Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 24 in Advanced Topics in Change Management. Today we will talk about organization cultures and how they change, or what they change and what are the implications of these change for organization design or organization structure. So our objectives today are to examine the ways in which organizational cultures vary, to assess their links to firms' competitiveness, to think about the ways in which organizational cultures are created and changed. Culture, we can define it, there are two basically famous definitions. One is by Drennan, 1992. Culture is how things are done around here. It is what is typical of the organization, the habits, the prevailing attitudes, the established pattern of accepted and expected behavior. Deft, 2007. Culture is the set of values, norms, guiding beliefs and understanding that is shared by members of an organization and is taught to new members. The culture की हमारे पास दो definitions हैं. Number one is by Drennan, 1992. कहता है culture is how things are done around here. It is what is typical of the organization, the habits, the prevailing attitudes, the established pattern of accepted and expected behavior. Or Deft कहता है culture is a set of values, norms, guiding beliefs and understanding that is shared by members of an organization and is taught to new members. ठीक है, तो ये होता है. This is, you can now see what the culture is and we will try to understand कि culture क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको कैसे देख सकते हैं. तो ब्राउन जो है 1995 में उसने ये एक लिस्ट दी है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है. वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो आर्टिफैक्ट्स उसका इजहार करते हैं, सिंबल्स और सिंबॉलिक इंटरेक्शंस उसका इजहार करते हैं. लैंग्वेज जो है वो भी उसका इजहार करती है इन फॉर्म ऑफ जोक्स, metaphors, stories, myths and legends and advertising. Behavioral patterns in form of rites, rituals, ceremonies and celebrations, norms of behavior, heroes, beliefs, values and attitudes, ethical codes, basic assumptions and history of the organization जो है ये सब कुछ जो है ये culture का इजहार करती. आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? ये देखिए, आर्टिफैक्ट्स ये होते हैं कि जो बेसिकली वहाँ पे लेट्स से अगर आपने एक अच्छी तस्वीर लगाई हुई है, आपने वॉल हैंगिंग्स लगाई हुई हैं, आपने डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं, तो ये सारे आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि कल्चर का इजहार करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन भी अगर इस किस्म के कुछ मैकेनिज्म्स यूज़ करती है या इस किस्म के आर्टिफैक्ट्स यूज़ करती है तो उसके कल्चर का इजहार कर रहे होते हैं. ठीक है, अब देखिए, अगर हम कहें कि जी के सिम्बल्स क्या होते हैं, तो सिम्बल्स जो हैं वो अनदर पार्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग कल्चर हैं. अ सिंबल इज समथिंग बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स अनदर थिंग. इन वन सेंस, सेरेमनी, स्टोरीज, राइट्स एंड ऑल आर सिम्बल्स बिकॉज दे सिंबलाइज डीपर वैल्यूज. ठीक है. Another symbol is a physical artifact of an organization. Physical symbols are more powerful. They focus attention on a specific item. Physical symbols are as follows. Like for example, अगर लंदन में एक firm है which is basically named as Mother. It's a London-based advertising firm known for its strong culture and offbeat ads. There are no private offices. In fact, except for the restrooms, there are no doors in the whole place. This headquarter design symbolizes and reinforces the culture and values of open communication, collaboration, creativity and equality. Sometimes symbols also represent something negative. For example, at Enron, premium parking spots were symbols of power, wealth and winning at any cost. For example, at the company's London office, executives submitted blind email bids for the limited spaces. One top manager paid more than $6,000 to use a well-placed company spot for a year. तो ये चीज़ें जो हैं ये आर्टिफैक्ट्स, सिंबल्स ये कल्चर का इजहार करते हैं. लैंग्वेज भी कल्चर का इजहार करती है. ठीक है, किस किस्म की जोक्स हैं, मेटाफोर्स हैं, स्टोरीज़ हैं, मिथ्स हैं, लेजेंड्स हैं, ये सारी जो हैं वो सिंबल्स का इजहार करती हैं. देखिए,
जो अदर स्टोरीज आर मिथ्स. मिथ्स क्या होती हैं? विच आर कंसिस्टेंट विद वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट आर नॉट सपोर्टेड बाय फैक्ट्स. मिथ्स क्या होती हैं? जो जनरली उनमें कोई ख़ास फैक्ट्स तो नहीं होते, लेकिन वो स्टोरीज फैलाई जाती हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ को उनका एक इजहार हो उससे. ठीक है. और फिर हम देखते हैं राइट्स क्या हैं. राइट्स एंड सेरेमनीज, द एलैबोरेट प्लान्ड एक्टिविटीज दैट मेक अप स्पेशल इवेंट एंड आर ऑफन कंडक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस. जनरली राइट्स क्या हैं? वो एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एनुअल गेट टुगेदर्स, एनुअल डिनर्स. ठीक है. या कंपनी स्पॉन्सर्ड इवेंट्स जो हैं वो बेसिकली इसलिए किए जाते हैं ताकि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए और वो आपस में मिल भी सकें और देख सकें कि कंपनी किस तरह ऑपरेट करती है. जहाँ ये जो सेरेमनीज हैं बेसिकली ये कंपनी की पर्टिकुलर वैल्यूज़ या बिलीव्स का इनमें इजहार किया जाता है, जहाँ उनको उनका एक इजहार होता है इनसे. ठीक है. देखिए स्टोरीज क्या हैं? स्टोरीज आर नैरेटिव्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली शेयर्ड अमंग एम्प्लॉयज एंड टोल्ड टू न्यू एम्प्लॉयज टू इन्फॉर्म देम अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. फॉर एग्जांपल IBM में एक स्टोरी मशहूर है कि वंस वहाँ पे एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड थी. IBM का प्रेसिडेंट एक ऑफिस में जाना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोक दिया. उसने कहा यू आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ऑफिस बिकॉज यू डोंट हैव सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर दिस ऑफिस. तो दिस स्टोरी सर्कुलेटेड इन IBM और प्रेसिडेंट ने इसको अप्रिशिएट किया कि मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी, आपने मुझे अलाउ नहीं किया. दिस मीन्स यू आर वेरी बेसिकली यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी. उन्होंने कहा जी कि बाय टेलिंग दिस स्टोरी employees emphasize that the importance of following the rules and critical contribution of every employee from the bottom to the top of the organization. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं ये कल्चर का इजहार करती हैं. इनमें आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, सिम्बल्स, सिम्बॉलिक एक्शंस हो सकते हैं, लैंग्वेज हो सकती है, बिहेवियर हो सकता है. नॉर्म्स क्या हैं? हीरोज़ के बारे में कैसे उनके बारे में क्या स्टोरीज मशहूर हैं? बेसिकली हीरोज़ हु सर्व एज मॉडल और आइडियल्स. ठीक है. जो कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएट करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जो कि मे बी वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं. ठीक है. तो उनके बारे में स्टोरीज मशहूर होती हैं, जैसे कि वो सिक्योरिटी गार्ड. ठीक है. कि हमने एग्जांपल ली. तो बिलीव्स, एटीट्यूड्स, एथिकल कोड्स, बेसिक असम्पशंस, हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री में भी जो है वो कल्चर मेंटेन करती है. पर्टिकुलरली जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन्होंने क्या वहाँ पे वैल्यूज़ इंस्टिल किए हैं, जो उन्होंने क्या वहाँ पे बिलीव्स इंस्टिल किए हैं, उसके कल्चर का इजहार करते हैं. ठीक है. अब देखिए हम कल्चर्स को मज़ीद फर्दर किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं. अगर हम देखें इंटेंसिटी, अगर हम एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स एंड नॉर्म को लें और वाई एक्सिस पे प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयज शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स एंड नॉर्म्स को लें, तो हम कहते हैं जी कि जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो वीक हो सकता है, एलिटिस्ट हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है या स्ट्रॉन्ग हो सकता है. तो अगर तो इंटेंसिटी ऑफ कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स एंड नॉर्म्स जो है वो लो हो और प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयज शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स वो भी लो हो, तो हम कहते हैं इट्स अ वीक कल्चर. अगर ये दोनों हाई हों तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर. अगर इंटेंसिटी ऑफ कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स एंड नॉर्म्स जो है वो हाई है बट प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयज शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स एंड नॉर्म्स जो है वो लो है, तो वैसे इट्स एलिटिस्ट कल्चर. ठीक है. सिमिलरली अगर प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयज शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स एंड नॉर्म्स वो तो हाई है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स एंड नॉर्म्स जो है वो लो है, तो वैसे इट्स अ डिफ्यूज सॉर्ट ऑफ कल्चर. अब फर्दर हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. और वो कैटेगरीज क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो ऑटोक्रेसी पे मुश्तमिल हो सकता है, टास्क बेस्ड हो सकता है, रोल बेस्ड हो सकता है, या प्रोफेशनल हो सकता है. ठीक है. अब हम देखना चाहते हैं कि ऑटोक्रेसी बेसिकली क्या है, टास्क बेस्ड कल्चर क्या है, रोल बेस्ड कल्चर क्या है, प्रोफेशनल कल्चर क्या है. वी विल सी इट विद द हेल्प ऑफ एनालाइजिंग डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स. क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? अगर हम कहें जी डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक हम करेक्टरिस्टिक लें, या डिसेंट्रलाइजेशन जो हम एक करेक्टरिस्टिक लें, तो ऑटोक्रेसी में लो होता है. ठीक है. टास्क में हाई होता है, रोल कल्चर्स में भी लो होता है,
प्रोफेशनल कल्चर्स में भी हाई होता है, ठीक है। कन्फर्मिटी टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोसीजर्स, ऑटोक्रेसी में लिमिटेड, टास्क में लिमिटेड, रोल में हाई, प्रोफेशनल में कंसिडरेबल। फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोक्रेसी में हाई होती है, टास्क में भी हाई होती है, रोल में लो होती है और प्रोफेशनल में लिमिटेड होती है। सोर्सेज ऑफ इनोवेशन एंड लर्निंग, ऑटोक्रेसी में ओनर या मैनेजर, टास्क में प्रोजेक्ट टीम्स ऑफ स्पेशलिस्ट, रोल में अगेन मैनेजर्स, प्रोफेशनल में प्रोफेशनल्स। एबिलिटी टू इंटीग्रेट डिफरेंट नॉलेज एंड स्किल्स, ऑटोक्रेसी में लिमिटेड होती है, ठीक है, टास्क में हाई होती है, रोल में लिमिटेड टू मैनेजरियल हायरार्की होती है, प्रोफेशनल में लिमिटेड टू प्रोफेशनल ग्रुप्स होती है। टिपिकल कंट्रोल सिस्टम क्या है? ऑटोक्रेसी में पर्सनल, टास्क में नॉर्मेटिव एंड आउटपुट बेस्ड, रोल में ब्यूरोक्रेटिक और प्रोफेशनल में नॉर्मेटिव एंड सब ब्यूरोक्रेटिक। तो देखिए यहाँ पे हम टिपिकली देख रहे हैं, जहाँ पिछले साइड पे हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो वीक हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है या एलिटिस्ट हो सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जनरली 4 किस्म की कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफाइन करने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो ऑटोक्रेसी पे मुश्तमिल हो सकता है, टास्क बेस्ड हो सकता है, रोल बेस्ड हो सकता है, जो प्रोफेशनल हो सकता है, ठीक है। और इस चीज़ को समझने के लिए हम उसमें जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका जायज़ा ले सकते हैं। और अगर हम देखते हैं डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑटोक्रेसी में लो होती है, टास्क में हमने कहा कि ये डिस्क्रिशन हाई होती है, अगेन रोल में डिस्क्रिशन लो होती है। बेसिकली हम बात कर रहे थे कि ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 हम कहते हैं जी कि ऑटोक्रेसी, टास्क कल्चर, रोल कल्चर एंड प्रोफेशनल, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि जी के इन कल्चर्स को समझने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या डिज़ाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देख के हम इन कल्चर्स में डिफरेंसेस को समझ सकते हैं, जहाँ हम इन कल्चर्स को ज़्यादा तौर पे बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑटोक्रेसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन और इन्वॉल्वमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें तो ऑटोक्रेसी में ये डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन जो है ये लो होती है, ठीक है। कन्फर्मिटी टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो है वो लिमिटेड होती है, फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है, सोर्सेज ऑफ इनोवेशन एंड लर्निंग, ओनर या मैनेजर सोर्स होता है जो कि आपको नए आइडियाज रहता है, जो आपने कहता है कि इन प्रोडक्ट्स पे काम करें, इन मार्केट्स में एंटर करें। एबिलिटी टू इंटीग्रेट डिफरेंट नॉलेज एंड स्किल्स लिमिटेड। टिपिकल कंट्रोल सिस्टम इट्स पर्सनल इन ऑटोक्रेसी, ठीक है। टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, जब टास्क कल्चर्स को हम स्टडी करने की कोशिश करें तो डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इट्स हाई। कन्फर्मिटी टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टास्क में लिमिटेड। फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगेन टास्क में इट्स हाई। सोर्सेज ऑफ इनोवेशन एंड लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हम करें तो प्रोजेक्ट टीम्स और स्पेशलिस्ट टीम्स जो हैं वो सोर्स होती है इनोवेशन और लर्निंग की। एबिलिटी टू इंटीग्रेट डिफरेंट नॉलेज एंड स्किल्स, तो टास्क की अगर हम बात करें तो अगेन टास्क कल्चर में इट्स हाई, ठीक है। टिपिकल कंट्रोल सिस्टम नॉर्मेटिव एंड आउटपुट बेस्ड सिस्टम्स होते हैं टास्क में। रोल कल्चर की बात करें तो डेलीगेशन की अगर हम बात करें, डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन एंड इन्वॉल्वमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो रोल कल्चर में अगेन ये चीज़ लो होती। कन्फर्मिटी टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर्स की बात करें तो रोल कल्चर में ये चीज़ हाई होती। फ्लेक्सिबिलिटी लो होगी। सोर्सेज ऑफ इनोवेशन एंड लर्निंग जनरली रोल कल्चर में मैनेजर्स आर द सोर्सेज ऑफ innovation and learning. Ability to integrate different knowledge and skills limited to managerial hierarchy. Typical control systems role based role based जो culture है उसमें is basically bureaucratic control system. Again let's see कि professional में क्या है। यहाँ पे भी अगर हम delegation of डिस्क्रिशन एंड इन्वॉल्वमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें
तो प्रोफेशनल में हाई होगी। कंफर्मिटी टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर्स की बात करें तो प्रोफेशनल में कंसिडरेबल होगी। फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होगी। सोर्सेज ऑफ इनोवेशन एंड लर्निंग, प्रोफेशनल में जनरली प्रोफेशनल्स जो हैं वही सोर्स ऑफ इनोवेशन एंड लर्निंग होते हैं। इन कल्चर्स की एबिलिटी टू इंटीग्रेट डिफरेंट नॉलेज एंड स्किल्स लिमिटेड टू प्रोफेशनल ग्रुप्स, ठीक है। और जबकि रोल में हमने देखा था इट वाज लिमिटेड टू मैनेजरियल हायरार्की। टिपिकल कंट्रोल सिस्टम्स, नॉर्मेटिव एंड सम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स, टू सम एक्सटेंड ब्यूरोक्रेटिक शेड्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी उसमें देखे जा सकते हैं। चलिए अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखना है, समझने की कोशिश करते हैं कि जी इन एग्जाम्पल्स की मदद से कि एक कंपनी का कल्चर जो है वो दूसरी कंपनी से कैसे डिफरेंट है। तो हमारी सबसे फेवरेट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, दैट्स बेसिकली द गूगल। तो हाँ, गूगल के बारे में हम क्या जानते हैं, देखिए, दो गूगल हैज ग्रोन अ लॉट सिंस इट ओपन 1998, वी स्टिल मेंटेन अ स्मॉल कंपनी फीलिंग। At lunchtime, almost everyone sits in the office cafe, sitting at whatever table has an opening and enjoying conversations with Googles from different teams. Our commitment to innovation depends on everyone being comfortable sharing ideas and opinions. Every employee is a hands-on contributor and everyone wears several hats. Because we believe that each Googler is an equally important part of our success, no one hesitates to pose questions directly to Larry or Sergey in our weekly all-hands meetings. We are aggressively inclusive in our hiring and we favor ability over experience. देखिए, गूगल जो है वो क्या कह रहे हैं कि गूगल के कल्चर को डिफाइन करने, गूगल के कल्चर को समझने के लिए हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि गूगल का कल्चर किस किस्म का है, ताकि आपको पता लग सके कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह डिफरेंट होता है, ठीक है। देखिए, हमने गूगल की एग्जांपल ली है और हम देख रहे हैं कि जी के वो कह रहा है कि गूगल में लंच टाइम में कैफ़े में सब लोग जहाँ जिसको जिधर जगह मिलती है मिल के बैठता है और ओपनली आइडियाज़ और ओपिनियंस जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। और जो इवन जो गूगल के टॉप मैनेजर्स हैं लाइक लैरी एंड सर्गी, उनसे भी कोई बात करने में डरता नहीं है, उनसे कोई आइडिया शेयर करने में डरता नहीं है। कहते हैं हम अपने हायरिंग के प्रोसेस में बड़े उसको ठोक बजा के लोगों को हायर करते हैं और हम एबिलिटी को फेवर करते हैं। एक्सपीरियंस डजंट मैटर्स फॉर अस। क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है काम करने का, डजंट मैटर्स। इफ यू हैव द एबिलिटी यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड वर्क फॉर गूगल। देखिए, हम फर्दर वो गूगल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको। आवर कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, fondly nicknamed the Googleplex, is located in Mountain View, California. Today, it's one of our many offices around the world. Here are few things you might see in a Google workplace. Bicycles or scooters for efficient travel between meetings, dogs, lava lamps, massage chairs, large inflatable balls, they are present. Googlers share cubes, yurts and huddle rooms and very few solo offices. Laptops everywhere, standard issue for mobile coding, email on the go and note taking. Football, pool tables, volleyball courts, assorted video games, pianos, ping pong tables and gyms that offer yoga and dance classes. Break rooms packed with a variety of snacks and drinks to keep Googlers going. अब ये वहाँ पे जो गूगल की जो एनवायरनमेंट है ये सारे उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो ये अगर आप थोड़ा समझिए तो आपको पता लगेगा कि गूगल कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसका कल्चर कितना फ्री और रिलैक्स्ड टाइप ऑफ कल्चर है जिसमें कि गूगलर्स काम करते हैं। तो कह रहे जी कि गूगल का जो हेडक्वार्टर्स है वो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में, जो कि आप अगर आप गूगल के ऑफिस को विजिट करना चाहें ऑन साइट ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। कहते जी कि जनरली गूगल पे लोग बाइसिकल्स पे, स्कूटर्स पे मीटिंग्स अटेंड करने आते हैं, डॉग्स भी ले आते हैं। लावा लैंप्स, डॉग्स नज़र आएंगे आपको, उनके पालतू कुत्ते भी उधर ही होते हैं। लावा लैंप्स, मसाज चेयर्स अवेलेबल हैं, इन्फ्लेटेबल बॉल्स। Generally Googlers, they share cubes, yurts and huddle rooms and there are no solo offices. Laptops are available everywhere, ठीक है। You can email on the go, mobiles are available, you can take notes on the go.
Different games are available, gyms, yoga classes, dance classes are available. Break rooms are there with a variety of snack and drinks to keep Googlers going. अगर YouTube को एक्सेस कर सकते हैं, आप YouTube पे जा सकते हैं, तो आप गूगल के बारे में एक मूवी भी देख सकते हैं और ये मूवी का लिंक आपकी स्लाइड्स में दिया जा रहा है। अब लाइफ एट गूगल किस किस्म की है? Google is not a conventional company and we do not intend to become one. True, we share attributes with the world's most successful organization. Our focus on innovation and smart business practices comes to mind, but even as we continue to grow, we are committed to retaining a small company feel. At Google, we know that every employee has something important to say and that every employee is integral to our success. We provide individually tailored compensation packages that can be comprised of competitive salary, bonus and equity components along with the opportunity to earn further financial bonuses and rewards. यहाँ पे हमें वो मज़ीद और गूगल की इन्वायरमेंट किस किस्म की है उसके बारे में बता रहे हैं आपको, ताकि आप गूगल के बारे में अच्छी तरह जानिए और फिर आप देखिए कि गूगल की इन्वायरमेंट दूसरी कंपनी से किस तरह डिफरेंट है। यहाँ पे फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसके मुताबिक क्या है कि गूगल इज़ नॉट अ कन्वेंशनल कंपनी and we do not intend to become one. True, we share attributes with the world's most successful organization. Our focus on innovation and smart business practices come to mind, but even as we continue to grow, we are committed to retaining a small company feel. At Google, we know that every employee has something important to say, and that every employee is integral to our success. We provide individually tailored compensation packages that can be comprised of competitive salary, bonus and equity components along with the opportunity to earn further financial bonuses and rewards. Google के employee benefits क्या हैं? The goal is to strip away everything that get in our employees way. We provide a standard package of fringe benefits, but on top of that are first-class dining facilities, gyms, laundry rooms, massage rooms, haircuts, car washes, dry cleaning and commuting buses. Just about anything a hard-working employee might want. Let's face it, programmers want to program, they don't want to do their laundry, so we make it easy for them to do both. Eric Schmidt, CEO, Google. देखिए किस तरह वो अपने employees का ख्याल रखते हैं. The Google goal is to strip away everything that gets in our employee ways. ठीक है, अगर laundry करने में एक programmer का time ज़ाया होता है तो गूगल में लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप प्रोग्रामिंग करें, डोंट वरी अबाउट लॉन्ड्री, ठीक है। थक गए, मसाज रूम्स अवेलेबल है, ठीक है, मसाज कराएं जाके, हेयर कट कराने का दिल चाह रहा है, हेयर कट कराएं, गाड़ी क्लीन करानी है, गूगल की प्रेमिसेस पे कराएं, ठीक है। गाड़ी चलाना नहीं चाहते, बसेस, कंफर्टेबल बसेस अवेलेबल है आपको घर ले जाने के लिए, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। Google culture is unlike any in corporate America. It's not because of the wishmill lava lamps and large rubber balls or the fact that one of the company chefs used to cook for the Grateful Dead. In the same way, Google puts users first when it comes to online services. Google puts employees first when it comes to daily life in the offices. So उनकी philosophy यहाँ पे क्या है? Philosophy है Google puts employees first when it comes to daily life in the offices. Benefits philosophy. We strive to be innovative and unique in all services we provide both to customers and employees, including our benefits and perks offering. We realize and celebrate that our employees have diverse needs and that this diversity requires flexible individual and individually directed support. Our priority is to offer a customizable program that can be tailored to the specific needs of each individual. ठीक है? The basic philosophy क्या है? वो benefits philosophy है. We strive to be innovative and unique in all services we provide both to customers and employees, including our benefits and perks offering. We realize and celebrate that our employees have diverse needs and this diversity requires flexible and individually directed support. Our priority is to offer a customizable program
that can be tailored to the specific needs of each individual. तो ये जो कुछ अल्फाज हैं ये गूगल की बेसिक फिलॉसफी का इजहार करते हैं। एक और हम थोड़ा सा देखते हैं कि जी कल्चर्स कैसे डिपिक्ट होते हैं विद द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट यूएस टेक्निकल लीडर्स। Some of the world's biggest technology companies are lifting pay rates and taking other measures to retain and encourage employees, reflecting both improved performance in their businesses and heightened competition for workers with the right experience. Hewlett Packard said this week on the internal blog for employees that it would reverse across the board cuts to base salaries that had been ordered by former chief executive Mark Hurd in February 2009. That followed Google's decision earlier in the month to grant its workforce a 10% rise, and Intel messaged to employees that bonuses early in 2011 would be the highest in a decade. तो आप अगर इन चीज़ों के बारे में फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो ये एक आपको लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पे जाके ये फर्दर भी इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये तरह जो ये एग्जांपल्स हैं ये इस चीज़ की एग्जांपल्स हैं कि लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली these examples are related to pay culture. We take another example of a company which is called ARM, and we see कि ARM का culture क्या है। ARM strives to foster a culture of honesty and accountability. The ARM culture is open and relaxed, and we believe that collaboration and contribution are central to progress. As a result, ARM regularly brings together people from around the world and from different business groups through internal conferences. In addition, movement through temporary assignments, rotation programs, and transfers is encouraged. This promotes cross-team and cross-divisional learning, resulting in development of new and innovative approaches and solutions. तो यहाँ पे पहले हमने पहली एग्जांपल ली गूगल की, ठीक है। अब हम एक और कंपनी के कल्चर के एस्पेक्ट्स का जायजा लेते हैं और हम देखते हैं कि ये कल्चर गूगल से कैसे डिफर करता है। जो आम कंपनी है वो कहती है कि हम जो कल्चर है वो ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी पे बेस्ड कल्चर को इनकरेज करना चाहते हैं। द आर्म कल्चर इज ओपन एंड रिलैक्स्ड, ठीक है, एंड वी बिलीव दैट कोलैबोरेशन एंड कंट्रीब्यूशन आर सेंट्रल टू प्रोग्रेस, ठीक है। ये उनकी कल्चर की बेसिक खूबियाँ हैं। तो जहाँ वो एनुअल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जहाँ पे अराउंड फ्रॉम पूरी दुनिया से आर्म के जो एम्प्लॉयज़ हैं आके उसको अटेंड करते हैं, वहाँ पे रोटेशन का प्रोग्राम अवेलेबल है, ट्रांसफर्स आर इनकरेज्ड, ठीक है, और क्रॉस टीम क्रॉस डिविजनल लर्निंग पे फोकस है, एंड दिस हेल्प्स देम इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव अप्रोचेस एंड सॉल्यूशंस। The ARM working environment is relaxed but ambitious, and we believe that what drives intellectual capital is social capital. Social capital is the bringing together of people in a community, sub-communities and teams. The fabric of social capital is trusting and open relationships between people and teams built on formal and informal, internal and external networks, as well as common language, culture and set of goals. ARM employs intelligent, leading-edge thinkers. This combined with collaborative and dynamic culture ensures that ARM is a great place for employees to learn, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने एक और कंपनी की एग्जाम्पल ली है। कंपनी का नाम है आर्म, और देखिए कि वहाँ पे बेसिकली दे वांट इंटेलिजेंट लीडिंग एज थिंकर्स। वो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंटेलिजेंट हों, लीडिंग एज थिंकर्स हों, ठीक है। उसके लिए उन्होंने एक कोलैबोरेटिव और डायनामिक कल्चर जो है उसको दे हैव ट्राई टू प्लेस इट इन द कंपनी, ठीक है। एक और कंपनी की एग्जांपल लेते हैं, दैट इज सोनी। सोनी का कौन नहीं जानता, पाकिस्तानियों को तो एक टाइम पे सोनी के टेलीविजन सबसे पसंदीदा थे। सोनी की इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पाकिस्तान में एक टाइम पे द बेस्ट अवेलेबल ब्रांड था, ठीक है। तो सोनी का तो आप जानते ही हैं। तो सोनी की एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि जिसकी मैनेजमेंट पॉलिसीज किस किस्म की हैं, वो उसके कल्चर का इजहार किस तरह होता है मैनेजमेंट पॉलिसीज से। कहते हैं जी, वी शैल एलिमिनेट एनी अनफेयर प्रॉफिट सीकिंग प्रैक्टिसेस, constantly emphasize activities of real substance and seek expansion, not only for the sake of size. We shall maintain our business operations small, advance technologically and grow in areas where large enterprises cannot enter due to their size. We shall be as selective as possible in our products, and we will even welcome technological challenges.
We shall focus on highly sophisticated technical products that have great usefulness in society, regardless of the quantity involved. Moreover, we shall avoid any formal demarcation between electronics and mechanics and shall create our own unique products, uniting the two fields with a determination that other companies cannot overtake. तो ये कुछ उनकी मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं जिससे उनके कल्चर का भी इजहार होता है कि इनोवेशंस पे बेस्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस कंपनी में, ठीक है। और फर्दर वो कहते हैं वी शैल fully utilize a firm unique characteristics which are well known and relied upon among acquaintances in both business and technical worlds, and we shall develop production and sales channels and acquire supplies through mutual cooperation. We shall guide and foster subcontracting factories in ways that will help them become independent, and we shall strive to expand and strengthen mutual cooperation with such factories. We shall carefully select employees, and our firm shall be comprised of minimum number of employees. We shall avoid to have formal positions for the mere sake of having them, and shall place emphasis on personal ability, performance and character so that each individual can fully exercise his or her abilities and skills. We shall distribute the company's surplus earnings to all employees in an appropriate manner, and we shall assist them in a practical manner to secure a stable life. In return, all employees shall exert their utmost effort to their job. देखिए ये जो मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हम देख रहे हैं ये बेसिकली सोनी के कल्चर का इजहार कर रही हैं। तो इनको पढ़ने के बाद आप देखें कि इज़ देयर एनीथिंग दैट इज़ डिफरेंट बिटवीन सोनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एज बेसिस फॉर कल्चर एंड गूगल्स कल्चर? इज़ देयर डिफरेंसेस? व्हाट आर दे? इन पर ज़रा गौर करें, देखें कि क्या हैं वो डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ कंपनीज, ठीक है। देखिए सोनी के हमने क्या बात की है, देखिए सोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह रहे हैं कि सोनी का कल्चर किस किस्म का है। वो कहते हैं जी कि वी शैल एलिमिनेट, अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, कोई प्रॉफिट सीकिंग नहीं करेंगे हम अनफेयर, ठीक है। एम्फसाइज एक्टिविटीज ऑफ रियल सब्सटेंस, सीक एक्सपेंशन नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ साइज। वी शैल मेंटेन आवर बिजनेस ऑपरेशन स्मॉल कंपनी, ठीक है, मेंटेन करेंगे स्मॉल प्रेमिसेस फैसिलिटीज, एडवांस टेक्नोलॉजिकली एंड ग्रो इन एरियाज वेयर लार्ज एंटरप्राइजेस कैन नॉट एंटर ड्यू टू देयर साइज. We shall be selective as possible in our products and will welcome technological challenges. We shall focus on highly sophisticated technical products that have great usefulness in society regardless of the quantity involved. Moreover, we shall avoid any formal demarcation between electronics and mechanics and shall create our unique products uniting the two fields with a determination that other companies cannot overtake. We shall fully utilize our firm's unique characteristics which are well known and relied upon among acquaintances in both businesses and technical worlds. We shall develop production and sales channels and acquire supplies through mutual cooperation. ठीक है, म्यूचुअल कॉपरेशन पे यहाँ पे एम्फेसिस किया जा रहा है, कैसे ग्रो करेंगे, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ठीक है। We shall guide and foster subcontracting factories in ways that will help them become independent, strive to expand and strengthen mutual cooperation. जो उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो उनके लिए डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो कहते हैं जिनसे कॉपरेशन बेस्ड रिलेशनशिप होगी. We shall carefully select employees and our firm shall be comprised of minimum number of employees. गैर ज़रूरी भर्तियाँ नहीं करेंगे, केयरफुली सेलेक्ट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को. We shall avoid to have formal positions for mere sake of having them and shall place emphasis on personal ability and performance and character so that each individual can fully exercise his or her abilities and skills. ठीक है कि यहाँ पे किस चीज़ पे एम्फेसिस है कि हम लोगों को, अपने लोगों को फुली डेवलप करेंगे. We shall distribute the company's surplus earning to all employees in an appropriate manner. तो हम कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते और जो सरप्लस प्रॉफिट्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने को तैयार हैं. तो दोनों गूगल और सोनी के एग्जांपल्स को ज़रा गौर से साइड बाय साइड रख के पढ़िए और देखिए क्या डिफरेंसेस हैं, क्या ये सिमिलर कल्चर्स हैं या डिफरेंट कल्चर्स हैं. ठीक है, दिस इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू टू डू. एक और कंपनी जो बड़ी मशहूर कंपनी है उसकी एग्जांपल लेते हैं, दैट्स अबाउट वॉलमार्ट.
वॉलमार्ट के बारे में मिस्टर सैम्स वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, उनके जो कोई होंगे बड़े मिस्टर सैम वॉल्टन, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं? वी आर नोन अराउंड द वर्ल्ड एज अ कंपनी दैट हेल्प आवर कस्टमर्स सेव मनी सो दैट दे कैन लिव बेटर. We are also well known for our unique corporate culture. Sam Walton built our businesses on values and morals. Those rules and customs have helped us become one of the world's most admired companies. देखिए यहाँ पे हिस्ट्री पे फोकस है कंपनी की, कि सैम वॉल्टन जो था, जो उनका फाउंडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव था, जो फाउंडिंग फादर था, उसने जो वैल्यूज़ और मॉरल्स इंस्टिल किए वॉलमार्ट में, वॉलमार्ट चाहती है कि उन्हीं वैल्यूज़ को इंस्टिल किया रखा जाए, उन्हीं वैल्यूज़ को सब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फॉलो करें. ठीक है, इसलिए कहता है, वो कहता है जी वी आर नोन अराउंड द वर्ल्ड एज द कंपनी दैट हेल्प्स आवर कस्टमर्स सेव मनी सो दे कैन लिव बेटर. वी आर ऑल्सो वेल नोन फॉर आवर यूनिक कॉर्पोरेट कल्चर. ठीक है, एंड जनरली वो कहता है ये कॉर्पोरेट कल्चर, इस कॉर्पोरेट कल्चर को, इसके रूल्स और कस्टम्स जो हैं किसने डेवलप किए? सैम वॉल्टन ने. रिस्पेक्ट पे एम्फेसिस है, रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है. एट द कोर ऑफ एवरी वन ऑफ आवर रूल्स एंड कस्टम्स इज द बेसिक वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द कस्टमर, द एसोसिएट्स एंड द सप्लायर. It's our focus for building relationships. It helps us serve the communities in which we live and build a business committed to excellence. दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है उनके कल्चर का? वो कहते हैं यहाँ पे ना सिर्फ लोगों की रिस्पेक्ट को बड़ी तरजीह दी जाती है, कस्टमर की रिस्पेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो कोलीग्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उनकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, और जो हमारे सप्लायर्स हैं उनकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं. और हमारा फोकस क्या है कि वी वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप्स. वी वांट टू सर्व कम्युनिटीज इन विच वी लिव एंड बिल्ड अ बिजनेस कमिटेड टू एक्सीलेंस. ओपन डोर. Our management believes open communication is critical to understanding and meeting our associates and our customers' needs. Associates can trust and rely on open door, one of the most important parts of our culture. Sun-do rule. Observing the sun-do rule means we do our best to answer requests by the close of the business on the day we receive them. Sundown rule, sun-do नहीं sorry, sundown rule. और sundown rule वो क्या कह रहा है कि जो भी हमें रिक्वेस्ट एक पर्टिकुलर डे में मिलती है हम उसको उसी दिन प्रोसेस करते हैं. ठीक है, कि ये उनकी एफिशिएंट बिजनेस की जो है उससे आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी एफिशिएंटली अपने बिजनेसेस को रन करते हैं. वो कहते हैं जी कि जिस दिन हमें कोई रिक्वेस्ट मिलती है उसी दिन हम उस पर अमल करते हैं. ग्रास रूट प्रोसेस. सैम फिलॉसफी लिव्स ऑन टुडे in Walmart grassroots process, a formal way of capturing associate ideas, suggestion, concerns. Associates हैं, उनके ideas जो हैं, उनकी suggestions और concerns जो हैं वो company के लिए बहुत ज़्यादा importance रखती हैं, और हम उनके ideas और suggestions को importance देते हैं. Walmart के culture के और क्या characteristics हैं? Basic beliefs और values क्या हैं? Our unique culture has helped Walmart become one of the world's most admired companies. Our culture rests on three basic beliefs: respect for the individual, service to our customers, striving for excellence. देखिए कहता है जी बेसिक बिलीव्स एंड वैल्यूज़ क्या हैं वॉलमार्ट पे, जो कि एम्प्लॉयज़ की सारी एक्टिविटीज़ को गाइड करती हैं. यू शुड रिस्पेक्ट एनी इंडिविजुअल, सर्विस, यू शुड प्रोवाइड सर्विस टू द कस्टमर्स, एंड स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस, सर्वेंट लीडरशिप. Sam Walton believed that effective leaders do not lead from behind their desk. It's more important than ever that we develop leaders who are servants, who listen to their partners, their associates, in a way that creates wonderful morale to help the whole team accomplish an overall goal. देखिए अगेन ये यहाँ पे उनकी इम्पोर्टेंट जो वैल्यूज़ हैं उनकी रिफ्लेक्शन है. सैम वॉल्टन जो उनका फाउंडिंग मेंबर था वो कहता जी कि बेसिकली मैं इस चीज़ पे नहीं बिलीव करता कि लीडर्स कौन है जो कि डेस्क पे बैठे रहें या अपनी टेबल कुर्सी या अपने दफ्तर में एयर कंडीशन लगा के आराम से बैठे रहें. वो लीडर्स नहीं हैं, बल्कि लीडर्स वो हैं जो कि अपने पार्टनर्स को लिसन करें, अपने एसोसिएट्स की बात को सुने
और सॉल्यूशंस डेवलप करें जिससे कि टीम का मोरल जो है वो हाई हो, ताकि ओवरऑल गोल्स जो है वो अचीव हो सकें। टीम वर्क पे एम्फेसिस है। सैम वॉल्टन बिलीव्ड इन द पावर ऑफ टीम वर्क as our stores grow and the pace of modern life quickens. That philosophy of teamwork has only become more important over the years. तो टीम वर्क जो है, देखिए टीम्स और टीम वर्क जो है उसकी इम्पोर्टेंस वॉलमार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं जैसे जैसे कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है और कंपनी जो है जैसे जैसे हमारे नए स्टोर्स या स्टोर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो वॉलमार्ट इस चीज़ पे बिलीव करता है कि टीम्स जो है, टीम्स में काम करने में या टीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में ही कंपनी जो है वो सक्सेसफुली ग्रो कर सकती है। वॉलमार्ट cheer. Do not be surprised if you hear our associates shouting this enthusiastically at your local Walmart store. It's our cheer, and while it might not sound serious, we take it seriously. It's one way we show pride in our company. ठीक है? तो जनरली वो कहते हैं जी वॉलमार्ट में उनका एक चीयर भी है, जो कि आपको जनरली आप वॉलमार्ट अगर विज़िट करें तो आपको लगता होगा कि एम्प्लॉइज़ को शोर मचा रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो अपना एक चीयर जो है अपनी एक सॉन्ग गा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो मोटिवेटेड फील करें। तो वॉलमार्ट के आपने ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे वॉलमार्ट के। आप ये सोचिए कि हाउ वुड यू कैटेगराइज वॉलमार्ट्स कल्चर? पर्सनल है, टास्क है, रोल है या प्रोफेशनल है, ठीक है, बेस्ड अपॉन व्हाट दे हैव रिटन अबाउट देमसेल्व्स। इज वॉलमार्ट डिपिक्शन ऑफ इट्स ओन कल्चर एक्यूरेट? अगर कभी वॉलमार्ट अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, या कभी अगर आपको बैरून मुल्क जाने का, पर्टिकुलरली अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ है और आप वॉलमार्ट के स्टोर्स पे गए, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे ये सारी खुसूसियात प्रेजेंट है? व्हाट आर योर रीजन बिहाइंड योर आंसर टू द प्रेडिक्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीसीडिंग क्वेश्चंस, कोई रीजंस भी सोचिए। तो देखिए कि वॉलमार्ट का कल्चर, उसको हम पर्सनल कल्चर कह सकते हैं, टास्क ओरिएंटेड कल्चर है, रोल ओरिएंटेड कल्चर है या प्रोफेशनल कल्चर है, ठीक है। इस चीज़ पे आप गौर करें और उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो दोबारा से हम देखते हैं कि जी कि ये टाइप्स ऑफ कल्चर जो हमने देखे थे वो क्या थे। तो हमने कहा था जी ऑटोक्रेसी बेस्ड कल्चर जो है उसमें डेलीगेशन, डिस्क्रिशन, इन्वॉल्वमेंट लो होती है, टास्क बेस में हाई होती है, कन्फर्मेटरी टू एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ऑटोक्रेसी में लिमिटेड है, टास्क में लिमिटेड है, रोल में लो होती है डेलीगेशन, ठीक है, रूल्स को हाई होती है, प्रोफेशनल में हाई होती है, कंसिडरेबल होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी हाई होती है ऑटोक्रेसी में, टास्क बेस में, रोल बेस में लो होती है, प्रोफेशनल में लिमिटेड होती है, सोर्सेज ऑफ इनोवेशन एंड लर्निंग, ओनर, मैनेजर, प्रोजेक्ट टीम्स, स्पेशलिस्ट, रोल में मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स, एबिलिटी टू इंटीग्रेट डिफरेंट नॉलेज एंड स्किल्स, ऑटोक्रेसी में लिमिटेड, टास्क में हाई, लिमिटेड टू मैनेजरियल हायरार्की, अगेन प्रोफेशनल में लिमिटेड टू प्रोफेशनल ग्रुप्स, टिपिकल कंट्रोल सिस्टम पर्सनल, नॉर्मेटिव एंड आउटपुट बेस्ड, रोल में ब्यूरोक्रेटिव, प्रोफेशनल में नॉर्मेटिव एंड सम ब्यूरोक्रेटिक। तो अगर वॉलमार्ट के बारे में जो हमने बातें की थी, जब वॉलमार्ट के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को जब हमने स्टडी किया था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? तो क्या आपको ये स्लाइड दोबारा देखने के बाद आसानी हुई कि नहीं हुई? क्या आप डिफ़ाइन कर सके हैं या नहीं कर सके? तो देखिए वॉलमार्ट के कल्चर को हम टास्क पे कल्चर के तौर पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं तो हम कह सकते हैं कि वॉलमार्ट का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो टास्क बेस्ड है। इफ़ यू डोंट एग्री, थिंक अबाउट रीजंस, यू नेसेसरी डोंट हैव टू एग्री विद मी, ठीक है। अब हम एक और कंपनी की एग्जांपल लेते हैं और हम देखते हैं कि लाइफ एट अर्नेस्ट एंड यंग किस किस्म की, जो कि प्रोफेशनल कंपनी है, ठीक है। As an experienced professional, you will find life here challenging and rewarding, but most of all inspiring. You know that when you choose to join us, you are choosing an organization committed to helping you achieve your unique potential and making a difference with your colleagues, your clients and your community. We are proud to have a culture that brings out the best in individuals and encourages them to pursue excellence and to support and encourage excellence in others. Our different backgrounds, cultures and points of view are vital to our success. They enrich the insights and recommendations we make to our clients and help us develop as individuals. At Ernst & Young, you will be able to be yourself, seize opportunities, build lasting relationships while building a great career.
अब हम अर्नेस्ट एंड यंग की एग्जांपल ले रहे हैं जो कि प्रोफेशनल कंपनी है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि जी कि यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है कि यू नो व्हेन यू चूज टू जॉइन अर्नेस्ट एंड यंग, you are choosing an organization committed to helping you achieve your unique potential and making a difference with your colleagues, your clients, and your community. We are proud to have a culture that brings out the best in individuals, encourages them to pursue excellence, and to support and encourage excellence in others. Our different backgrounds, cultures, and points of view are vital to our success. They enrich the insights and recommendations we make to our clients and help us developing as individuals. At Ernst & Young, you are able to be yourself, seize opportunities, and build lasting relationships while building a great career. तो इससे हमें अर्नेस्ट एंड यंग के कल्चर की थोड़ी सी खसूसियात पता लगती है, ठीक है। अर्नेस्ट एंड यंग पीपल के लिहाज से क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? वी स्ट्राइव टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट वेयर टैलेंटेड पीपल कैन डेवलप, फ्लरिश एंड मेक अ डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो कहना है कि जी कि हम इस किस्म के लोगों को रिक्रूट करते हैं या रिटेन करना चाहते हैं जो कि टैलेंटेड लोग हों, और उनको हम फर्दर डेवलप करते हैं ताकि वो फ्लरिश करें और एक डिफरेंस क्रिएट करें। यू विल बी पार्ट ऑफ अ कल्चर वेयर रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी एंड टीमिंग डिफाइन द वे वी वर्क टुगेदर। यू विल बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स दैट एम्ब्रेस डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, helping us harness the diversity of our people to create the best results for our clients. You will also find support for your continuous growth and success. You will discover that we have a genuinely open approach to teaming and account management, built on the trust we have for our fellow professionals. This means that you will add value to a wide range of clients and teams with a diverse range of colleagues. You will work across geographical and cultural boundaries, meeting challenges, addressing opportunities, and helping our clients succeed. As a result, you will forge lifelong relationships that will serve you throughout your career. तो यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि उनके एनवायरनमेंट किस किस्म की है, उनकी कल्चर किस किस्म का है, ठीक है। तो इसमें गौर करने की क्या चीज़ है कि वो आपको बता रहे हैं कि जी कि किस किस्म की एनवायरनमेंट है जहाँ पे टैलेंटेड लोग जो हैं वो काम करते हैं अर्नेस्ट एंड यंग में, ठीक है। आप किस किस्म के कल्चर का पार्ट होंगे जहाँ पे रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी और टीम वर्क पे एम्फेसिस है। आप अपने काम के दरमियान, अपने काम के दौरान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे, ठीक है। आप अपने क्लाइंट्स को, उनको भी सर्व करेंगे, उनके लिए बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करेंगे, लेकिन इसी प्रोसेस में आप खुद भी ग्रो करेंगे और सक्सेस अचीव करेंगे। यू विल डिस्कवर दैट वी हैव जेन्युइनली ओपन अप्रोच टू टीमिंग एंड अकाउंट मैनेजमेंट। ट्रस्ट, क्लाइंट के साथ एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप होगी और फेलो प्रोफेशनल्स के साथ भी ट्रस्ट की रिलेशनशिप होगी। This means you will add value to a wide range of clients and teams with a diverse range of colleagues. You will work across geographical and cultural boundaries, meeting challenges, addressing opportunities, and helping our clients succeed. Again, values के point of view से उनके culture को आप किस तरह दे सकते हैं? We hold our people to the highest level of personal and professional standards. It's a promise we make to clients, regulators, and financial markets and to ourselves. देखिए वो कहता है जी कि हम अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ वैल्यूज़ जो हैं, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, पर्सनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स उनमें एग्जिस्ट करते होंगे, ताकि हम अपने क्लाइंट्स को, रेगुलेटर्स को, फाइनेंशियल मार्केट्स को सेटिस्फाई कर सकें। हु वी आर, कहते हैं हम किस किस्म के लोग हैं। पीपल हु डेमोस्ट्रेट इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड टीमिंग, people with energy, enthusiasm, and courage to lead, people who build relationships based on doing the right thing. We put our values into action by following the practical guidance in our global code of conduct. This is more than just words. It provides the ethical framework we expect our people to use to make decisions. Our values are so important to the way we think and act that every person in the firm signs an annual affirmation of a code of conduct. देखिए वहाँ पे अगेन वो हमें बता रहा है कि हम अपनी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, जो हमारी फेयरनेस, जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है, और हर एम्प्लॉय जो है हर साल हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को साइन करता है, ठीक है।
or some organizations may view an uncompromising commitment to values as a barrier to growth. But at Ernst & Young, it's just the reverse. We know that we will achieve our business goals because of high standards we set for ourselves. So, if ever your moral compass suggests something is off course, don't be afraid to speak up. Don't be afraid to speak up. You may be just starting out, but your opinions and concerns count. No client, colleague or business objective is more important than your integrity or the quality standards and reputation of our organization. ठीक है, तो देखिए वो कहता है जी कि वहाँ पे किस किस्म का कल्चर है कि अगर आप समझते हैं कि मॉरल स्टैंडर्ड्स पे कंप्रोमाइज़ किया जा रहा था, यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू स्पीक आउट, क्योंकि हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और रेपुटेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मैटर करते हैं। तो अर्नेस्ट एंड यंग में उन्होंने उनके बेसिक इससे क्या हम अखज़ कर सकते हैं, जैसे हमने क्या नताइज अखज़ किए हैं। वो कहते हैं जी अर्नेस्ट एंड यंग, वी एक्नॉलेज दैट ब्रीचेस ऑफ अ ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट मे रिजल्ट इन आवर प्रैक्टिसेस टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अप टू एंड इंक्लूडिंग टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को या हमारे वैल्यूज़ को मेंटेन नहीं कर सकते तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, एंड मे बी यू मे बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब। We affirm in writing an understanding of principles contained in Global Code of Conduct and our commitment to abide with them. और हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, एंड उन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि वो उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, वर्किंग विद क्लाइंट्स एंड अदर, नो क्लाइंट और एक्सटर्नल रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड रेपुटेशन ऑफ अर्नेस्ट एंड यंग। कहता जी कि कोई भी क्लाइंट जो है वो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स, इंटेग्रिटी और रेपुटेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो हम अपने कोड ऑफ कंडक्ट को, कि वहाँ का कल्चर क्या है कि वैल्यूज़ और एथिक्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अर्नेस्ट एंड यंग में। ठीक है, क्वेश्चंस आपके जहन में क्या क्वेश्चंस होते हैं, आप क्या समझते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट, आर देयर एनी रूटीन्स एसोसिएटेड विद दिस डॉक्यूमेंट, हाउ डू दे हेल्प और हिंडर द कंपनी कॉम्पिटिटिवनेस। इन क्वेश्चंस पे ज़रा अर्नेस्ट एंड यंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है ज़रा गौर करें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस को हम किस तरह फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं या उनका कंट्रास्ट किस तरह कर सकते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो प्रोसेस ओरिएंटेड हो सकती हैं या रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंट प्रोसेस ओरिएंटेड क्या होती हैं, जो कि फोकस करती हैं आउटपुट्स पे, और रिजल्ट ओरिएंटेड कौन से होते हैं जो कि रिजल्ट पे से फोकस करती हैं, लेकिन उनमें प्रोसेस भी इम्पोर्टेंस रखता है। द वे यू डू योर वर्क, किन एक्टिविटीज़ के थ्रू किस तरह आप करते हैं, वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्या एथिकल है, सस्टेनेबल प्रोसेस है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के मुताबिक वो प्रोसेस है या नहीं, तो वो बहुत मैटर करता है। रिजल्ट ओरिएंटेड हमने पहले भी बात की थी कि अगर इफ़ यू अचीव योर रिजल्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन इज बॉर्डर के आपने क्या प्रोसेस इस्तेमाल किए। Employee oriented, job oriented, extent to which managers focus on employee development rather than immediate task performance। ठीक है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, जिसमें कि एम्प्लॉय को डेवलप करने पे फोकस किया जाता है और इमीडिएट टास्क परफॉर्मेंस इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। फेरोशियल एंड प्रोफेशनल, एक्सटेंट ऑफ स्टाफ आइडेंटिफिकेशन विद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट एंड कंपनी और ऑक्यूपेशन एंड स्किल। अगर फरोशियल किस्म की प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट या कंपनी के साथ जो आपकी कमिटमेंट है वो मैटर करती है। लेकिन प्रोफेशनल क्या होती है, जहाँ पे आपकी ऑक्यूपेशन या स्किल के साथ आपकी जो कमिटमेंट है वो ज़्यादा मैटर करती। ठीक है, ओपन सिस्टम्स वर्सेस क्लोज सिस्टम, एक्सटेंट टू विच ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनली फोकस्ड एंड सेपरेट फ्रॉम एनवायरनमेंट। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होता है, जो कि आप कॉन्टियसली अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में बॉदर्ड होते हैं या आप एनवायरनमेंट जो है उसका ध्यान रखते हैं, ठीक है, या एनवायरमेंटल चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वी से यू हैव एन ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम यू आर नॉट बॉदर्ड, या एनवायरमेंटल चेंजेस जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। लूज कंट्रोल, टाइट कंट्रोल। ठीक है, एक्सटेंट टू विच स्टाफ एक्सपेक्टेड टू कंफर्म टू ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स एंड बिहेवियर। अगर ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म एंड बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हो तो देयर इज अ टाइट कंट्रोल, अगर थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो तो वैसे देयर इज अ लूज कंट्रोल। नॉर्मेटिव वर्सेस प्रैग्मेटिव, एक्सटेंड ऑफ कमिटमेंट टू मीटिंग कस्टमर नीड्स। ठीक है,
नॉर्मेटिव और प्रैग्मेटिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि प्रैग्मेटिव प्रैक्टिसेस ये होती हैं कि जनरली कस्टमर्स की नीड्स पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है और सारा फोकस होता है कि कस्टमर्स की नीड को मीट किया जाए। नॉर्मेटिव क्या होती हैं जहाँ पे कि जनरली एथिक्स या जनरली जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी मैटर करता है। दी वे जैसे कि हमने अर्नेस्ट एंड यंग की बात की थी कि नॉर्मेटिव कल्चर है, अगर एथिकली जो उनकी कोर वैल्यूज़ हैं उनसे क्लाइंट्स की जो नीड्स हैं वो मैच नहीं करती तो क्लाइंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट देन दी ethics or code of conduct of Ernst and Young as such. ठीक है? An example of open and versus closed system. In a swipe at a Gerard Lefort, his predecessor and former head of research and development, who was appointed chief executive and ousted within months, he said, "We had really a scientific organization that really lived within its own walls. Not a lot of external partnerships, virtually no contact with commercial organizations." ठीक है? This is a closed system, ठीक है, जो कि उसके एग्जाम्पल है। Mr. Wichpacher also criticized the ridiculous Sanofi Aventis name in China, where he said most company names have just 3 syllables. It should be shortened to Sanofi, he said. We have to be much more adapted to our markets and customers and fight globalization, he said. तो Sanofi जो है, Sanofi Aventis जो है मशहूर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके बारे में कुछ उसके जो लोग हैं उनका ख्याल है कि इट हैज़ अ क्लोज सिस्टम और उसको जनरली एनवायरनमेंट के बारे में कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ जनरली ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। तो अब हम इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा गौर करते हैं और हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स जो हैं दे ऑल डिपेंड अपॉन व्हाट सिलेक्शन सिस्टम्स पे, कि आप सिलेक्शन सिस्टम जो है वहाँ पे किस तरह फ़िल्टर करते हैं कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके कल्चर में फिट इन हो सकेंगे। आपकी ट्रेनिंग किस किस्म की है, आप ट्रेनिंग के थ्रू अपने कल्चर को इंस्टिल कर सकते हैं। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिचुअल्स, सिम्बल्स और लेजेंड्स हैं ये इस चीज़ को मज़ीद फोर्स कर सकते हैं या इस चीज़ को मज़ीद एम्फसाइज कर सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को मज़ीद स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। रिवॉर्ड सिस्टम्स किस किस्म के हैं, प्रमोशन और कैरियर स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ठीक है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इन्फोर्स करते हैं। क्या जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से मैच नहीं करते, मे बी उनको आप रिवॉर्ड नहीं करते, फिर या जो के ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ या कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो नहीं करते उनको आप फिर उसी तरह रिवॉर्ड भी उसी तरह अलाइन किया जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर वैल्यूज़ हैं, कोर प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो कोर उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो नहीं करते तो वो उनको उसी तरह उनका रिवॉर्ड भी जो है उससे अलाइंड है और उनके प्रमोशन और कैरियर स्ट्रक्चर भी अलाइंड है। टॉप मैनेजमेंट जो है अगर वो इन सारी चीज़ों पे नज़र रखती है तो टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकती है। ठीक है, और जनरली टॉप मैनेजमेंट का एम यही होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को फर्दर स्ट्रेंथन करे। तो जनरली हमारे आप क्वेश्चन क्या हैं कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आपको वही जो हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ठीक है, स्टोरीज, रिचुअल्स, टॉप मैनेजमेंट एटीट्यूड, इसके थ्रू आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं या फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि इज़ इट ईजियर टू चेंज एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? क्या आप ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर चेंज करना एक आसान काम है? तो नो, इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू डू, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अंडरटेक। कि कल्चर जो है एक कल्चर जिसके मुताबिक लोग जैसे देखें कि पाकिस्तान में करप्शन का कल्चर बड़ा कॉमन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो करप्शन है वो मौजूद है, तो इस कल्चर को चेंज करना या पाकिस्तानियों को करप्शन से बाज रखना, तो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस में कल्चर उनको करप्शन से पाक करना अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू। ठीक है, changing organization culture involves creating new symbols and values, implementing new reward systems, changing career structures, restructuring authority relations, rotating staff, changing top manager skills and priorities। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को चेंज करना चाहते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आप चेंज लेके आना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, यू नीड टू चेंज जो एग्जिस्टिंग सिम्बल्स एंड वैल्यू सिस्टम है, आपको एक नया रिवॉर्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, आपको वहाँ पे कैरियर स्ट्रक्चर्स को चेंज करना पड़ता है, अथॉरिटी रिलेशंस को चेंज करना पड़ता है, स्टाफ को चेंज करना पड़ सकता है और टॉप मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट जो है उनकी स्किल्स या प्रायोरिटीज़ को भी चेंज किया जा सकता है।
ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कब आसानी से चेंज किया जा सकता है? When external stakeholders seek change, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, they want to change the culture. Powerful internal groups support change. जो पावरफुल इंटरनल ग्रुप्स हैं लाइक यूनियंस हैं या जो कोर एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो चेंज को सपोर्ट करें. वाइड स्प्रेड परसेप्शन ऑफ क्राइसिस, जब ये हो कि जी कि अब ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस है, जो क्राइसिस में और कल्चर चेंज किए बगैर ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सर्वाइवल है, दैट्स नॉट पॉसिबल. अगर आप रेलवे के, पाकिस्तान रेलवे के कल्चर को अब चेंज नहीं करते, मे बी आफ्टर फ्यू ईयर्स देयर विल बी नो रेलवे. ठीक है, तो जब ये एक क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो तब भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करना आसान हो सकता है. ठीक है, इंटरनल प्रोसीजर सिस्टम्स नो लॉन्गर सूट एक्सटर्नल कंडीशंस. जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स हैं वो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से अब मज़ीद उनको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं, तो उनका चेंज करना ज़रूरी हो जाता है. तो आज के लेक्चर के कंक्लूजन्स क्या हैं, या आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग लिंक्स बिटवीन अ कंपनी कम्पिटिवनेस इन हिज कल्चर. A company proclaimed culture may not be culture experienced by employees. Corporate cultures are created in many ways. The extent to which corporate cultures can be changed will depend on range of factors, not just leadership. ठीक है, तो देखिए कि आज हमने बेसिकली क्या बात की है कि हमने देखा है कि जी के ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है. आज हमने बेसिकली जो स्टडी किया है, हमने देखा है कि जी के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है उसको चेंज कैसे किया जा सकता है. ठीक है, तो हमने जो आज एग्जामिन किया, हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है क्या, वो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फर्म की कम्पिटिवनेस के लिए कैसे मैटर करता है, और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स क्या आसानी से चेंज किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते. ठीक है, तो हमने देखा जी, हमने सबसे पहले आज कल्चर को डिफ़ाइन किया. ठीक है, फिर हमने कहा कि कल्चर बेसिकली कैसे डिपिक्ट होता है. हमने कहा जी कल्चर जो है, जैसे किसी एक सोसाइटी का कल्चर जो है वो उस वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों से उसका इजहार होता है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स से एक सोसाइटी के कल्चर का इजहार होता है. इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की मदद से समझा जा सकता है. वो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स हैं, सिंबल्स हैं, सिंबॉलिक एक्शन है, लैंग्वेज क्या है, बिहेवियरल पैटर्न्स क्या है, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर क्या है, उनके हीरोज़ कौन हैं, या हीरोज़ किस किस्म के क्रिएट किए जाते हैं, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स किस किस्म के हैं, एथिकल कोड्स क्या हैं, बेसिक असम्पशंस क्या हैं, और हिस्ट्री क्या है. चाहे ये किसी एक माशरे की हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, इन करेक्टरिस्टिक्स की मदद से हम एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफ़ाइन कर सकते हैं. फिर हमने ये देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वीक हो सकता है, एलिटिस्ट हो सकता है, डिफ्यूज़ हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग हो सकता है. फिर हमने कहा कि जी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स क्या हैं. ऑटोक्रेसी बेस्ड हो सकते हैं, टास्क बेस्ड हो सकते हैं, रोल बेस्ड हो सकते हैं, और प्रोफेशनल हो सकते हैं. फिर हमने गूगल की एग्जांपल ली और गूगल के कल्चर को समझने की कोशिश की. ठीक है, फिर हमने आम कल्चर जो है, एक और कंपनी, उसके कल्चर के बारे में थोड़ी सी बात की. सोनी के कल्चर के बारे में बात की, वॉलमार्ट के कल्चर के बारे में बात की. ठीक है, और हमने ये समझने की कोशिश की कि इन जो ये दुनिया की मशहूर फेमस कंपनीज हैं, इनके कल्चर को हम कैसे परख सकते हैं, इनके कल्चर के से हम इन कंपनीज के बारे में क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, फिर हमने अर्नेस्ट एंड यंग की एग्जांपल ली और हमने कहा कि अर्नेस्ट एंड यंग जो है अपने कोड ऑफ कंडक्ट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं. ठीक है, फिर हमने ये देखने की कोशिश की कि ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो कैसे डिफ़र कर सकती हैं. ठीक है, हमने कहा जी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, या रिजल्ट ओरिएंटेड है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड है, या जॉब ओरिएंटेड है, फरोशियल है, या प्रोफेशनल है. ठीक है, ओपन सिस्टम्स पे बिलीव करती है या क्लोज सिस्टम पे लूज कंट्रोल रखना चाहती है या टाइट कंट्रोल, नॉर्मेटिव है या प्रैग्मेटिक है. तो ये चीज़ें जो हैं उसके कल्चर को डिफ़ाइन करती हैं, ये प्रैक्टिसेस जो हैं उसके कल्चर को डिफ़ाइन करती हैं. और क्लोज कल्चर की हमने सोफी अबोंटिस के एग्जांपल को हमने एज अ क्लोज कल्चर एग्जांपल के तौर पे देखा. ठीक है, फिर हमने कहा जी कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो उसकी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है कि किस तरह के लोगों को आप सिलेक्ट करते हैं, आपकी सिलेक्शन पॉलिसीज़ क्या हैं, ट्रेनिंग पॉलिसीज़ क्या हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिचुअल, सिंबल्स और लेजेंड्स क्या हैं, रिवॉर्ड सिस्टम्स क्या हैं, प्रमोशन और कैरियर स्ट्रक्चर्स किस किस्म के हैं, टॉप मैनेजमेंट का बिहेवियर किस किस्म का है. ठीक है,
और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करना चाहते हैं तो यू हैव टू चेंज, यू हैव टू क्रिएट न्यू सिंबल्स एंड वैल्यूज़, you have to implement new reward systems, you have to change your career structures, you have to restructure authority relationships, you have to rotate your staff, you have to change the priorities and skills of your top management, ठीक है? And it can be easily done when external stakeholders, they want to change the culture of an organization. अगर गवर्नमेंट PIA का कल्चर चेंज करना चाहती है, या रेलवे का कल्चर चेंज करना चाहती है, या सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर चेंज करना चाहती है, तो इट्स वेरी इजी टू बी डन, और वो गवर्नमेंट आसानी से कर सकती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ठीक है? अब देखिए कुछ कोशिश भी हो रही है आजकल, आप देखिए कि अखबारों में ऐड आ रहे हैं कि टॉप जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं उनके लिए मार्केट से अच्छे चीफ एग्जीक्यूटिव्स को सिलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि वो उनको कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे। जब इंटरनल ग्रुप्स ये समझते हो कि अब कल्चर को चेंज होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस में जाने वाली है, ऑलरेडी क्राइसिस का शिकार है, और बहुत जल्द जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लाइन में चली जाएगी। जब इंटरनल सिस्टम्स जो हैं, जो इंटरनल प्रोसीजर्स जो हैं, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मज़ीद मुताबिकत ना रखते हों, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब पुराना पाकिस्तान में ID कार्ड इशू करने का तरीक़ेकार था, वो अब जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं उनकी वजह से मज़ीद पॉसिबल नहीं था कि हाथ से ID कार्ड्स लोगों को बना के दिए जाए। तो नादरा की ज़रूरत थी, जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस करती है, ठीक है? तो आज कंक्लूजन्स क्या हैं कि हम समझते हैं कि कल्चर का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्पिटिटिव होगी या नहीं, और जनरली नहीं, जो कल्चर आप क्लेम करते हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट भी करता हो। कॉर्पोरेट कल्चर्स बहुत सारे तरीक़ों से कायम किया जा सकते हैं, और जो कॉर्पोरेट कल्चर किस एक्सटेंट तक चेंज होगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और सिर्फ लीडरशिप पे डिपेंड नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर 25 में मुलाकात होगी, और लेक्चर 25 में विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी हम देखेंगे कि कल्चर्स जो हैं वो किस हद तक एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैटर करते हैं, या कल्चर्स जो हैं वो वक्त के साथ उनको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।